Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we are going to discuss Ben Jonson's another play, The Alchemist, which was performed on 1610. The age of Jonson, the age in which the great dramatist matured and created, covers roughly the last quarter of the 16th century and the first 40 years of the 17th century. Thus, in a way, Jonson is the connecting link between the glorious age of Queen Elizabeth and the Puritan age which followed. It was an age of disillusionment, of increasing gloom and pessimism, and this melancholy and gloom of the age colors the literature of the period. Ben Jonson was a prolific writer. His chief dramatic works may, for convenience of study, be divided into the following categories. The first one is comedies, the chief of which are Every Man in His Humour, Every Man Out of His Humour, Epicon or The Silent Women, Volpone, The Fox, Bartholomew Fair, The Alchemist, etc. The second one is masques, the chief being Blackness of the Queen and Prince at Altrop, or The Styrel King James, Entertainment, The Masque of Alls, Love's Welcome, The Masque of Queens, etc. The third one is tragedies, in which The Sad Shepherd, Sejanus, Catiline, etc. So, first we will go through the characters of the book. In The Alchemist, the first one is Subtle, the alchemist, Face, the housekeeper, which is also known as Jeremy, Doll Common, their colleague, basically she's one of the prostitute, Dapper, a lawyer's clerk, Druggler, a tobacco man, Lovewit, master of the house, Sir Epicure Mammon, a knight, Pertinax Shirley, a gamester, Tribulation Holzman, a pastor of Amsterdam, Ananias, a Deccan there, Castril, the angry boy, Demplian, a young widow and also sister of Castril, and then some neighbors and some officers. So let's begin. Play begins with Plague has been raging in London. So, यहाँ क्या हो रहा है? लंदन की कहानी बताई जा रही है जब प्लेग आ गया था वहाँ. Lovewit, the owner of the house, left the city and gone to the countryside to escape the ravages of the epidemic. So, Lovewit, जो कि एक हाउस रहता है, उसका मास्टर रहता है, उसने क्या किया? अपने घर को छोड़ के कंट्री साइड पे चला गया. क्यों? क्योंकि उस समय वहाँ पे प्लेग फैला हुआ था और उसने अपने घर को अपने सर्वेंट फेस यानी कि जेरेमी उसके भरोसे छोड़ के चला गया. He left behind his servant Jeremy to take care of the house in his absence. Okay. Now Jeremy, Subtle, Doll Common used the house freely to cheat and defraud the people who believe in alchemy and hope to get the philosopher's stone. So basically होता क्या है, जैसे ही लवविट अपने घर को छोड़ के चला जाता है जेरेमी के ऊपर, तो जेरेमी अपने कुछ कलीग्स के साथ मिलके, जिसमें से एक का नाम सटल रहता है, एक का नाम डॉल कॉमन रहता है, वो तीनों मिलके प्लानिंग प्लॉटिंग करना शुरू कर देते हैं. घर को वो मिसयूज करना शुरू कर देते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए एल्केमी शुरू करते हैं. और यहाँ पे जो फिलोसोफर स्टोन है, एक बेसिकली ऐसी चीज है जिससे कुछ भी टच करने पे वो चीजें गोल्ड में कन्वर्ट हो जाती हैं. द आर्ट ऑफ ट्रांसम्यूटेशंस ऑफ अ बेस मेटल इनटू गोल्ड seems to have originated in Egypt. It combined with the search for the universal medicine, a kind of
एलाइजर ऑफ लाइफ। तो ये लोग इसी का यूज करते थे और हर किसी को बेवकूफ बनाने के लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे थे। सो वन बाय वन इनके क्लाइंट्स आना शुरू होते हैं। फर्स्ट वन इज डैपर। डैपर रिक्वेस्टेड हिम टू प्रोवाइड हिम अ अटेंडेंट स्पिरिट हु विल हेल्प हिम विन द गेम ऑफ कार्ड्स, बेसिकली इन ऑल काइंड्स ऑफ गैम्बलिंग। तो फर्स्ट उनका जो विजिटर रहता है ना, क्लाइंट, वो डैपर रहता है, ठीक है। तो डैपर क्या करता है, वहां आता है और उन लोगों से कहता है कि मुझे कुछ ऐसी स्पिरिट दो, मुझे कुछ ऐसी शक्तियां दो जो कि मुझे कार्ड्स के जो गेम होते हैं ना, गैम्बलिंग होती है, इन सबको जीतने में हेल्प कर सके। सो दे टोल्ड डैपर इट विल रिक्वायर्ड मोर मनी। डैपर अग्री विद देम। तो अब क्या है, अगर आप किसी से इस तरह की चीजों को डिमांड करते हो तो वो तो कहेंगे ना कि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगेगी, इसमें बहुत खर्चा लगेगा, तो मुझे बहुत पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो डैपर उसके लिए भी अग्री कर जाता है, ठीक है। Then Subtle says that Dapper has all the signs of a lucky man. उसी दौरान जो सटल था वो डैपर से कहता है कि तुम बहुत ही लकी मैन हो, तुम में बहुत सारे ऐसे साइंस हैं जो कि एक अच्छे इंसान के, एक लकी मैन के होते हैं, तुम पक्का से जीतोगे ही जीतोगे, ठीक है। और डैपर ये सारी कन्वर्सेशन सुन के मन ही मन बहुत खुश होता है। और उन लोगों में एक चीजें और होती हैं कि डैपर जब भी जीतेगा तो वो अपनी हाफ ऑफ द विनिंग होती है जो वो सटल को देगा, क्योंकि उसने उसकी इतनी मदद करी है। सो ही टोल्ड सटल ही विल गिव मोर मनी व्हेन ही केम टू मीट क्वीन ऑफ फेरीज। उसी दौरान सटल ने डैपर को कहा कि एक क्वीन ऑफ फेरीज है जिससे मैं तुम्हें मिलाऊंगा। तो सटल के ये कहने पर डैपर कहता है कि ठीक है, जब मैं नेक्स्ट टाइम जब क्वीन ऑफ फेरीज से मिलने आऊंगा तो मैं तुम्हें और ज्यादा पैसे दूंगा, ओके। Abel Drugger is the next arrival. He is a seller of tobacco. तो इनके जो नेक्स्ट क्लाइंट थे वो थे एबल ड्रगर। वो क्या थे, एक व्यापारी थे, टबैको के बहुत बड़े सेलर थे। Then Subtle scans him meaningfully and says that his face shows that he is already on the high road of prosperity. तो जैसे बेसिकली होता नहीं है नॉर्मल, किसी किसी को हम देख के कहते हैं अरे तुम्हारी लाइफ तो बहुत अच्छी है, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी होने वाली है कल को चल के। उसी तरह सटल ने भी उसे बेवकूफ़ बनाया कि अरे तुम्हारी भी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है कल को, तो तुम बहुत नाम शोहरत कमाने वाले हो। तो ये सब सुन के ना एबल ड्रगर बहुत ही ज्यादा अंदर अंदर से खुश हो जाता है। एंड देन ही आस्क्ड सटल टू लेट हिम नो हिज बैड डे सो दैट ही मे नॉट एंटर इन एनी बार्गेन ऑन दोज डेज। सो उसी समय क्या होता है ना, ड्रगर सटल से ये पूछता है कि प्लीज मुझे मेरे अच्छे दिनों के बारे में बताओ और बुरे दिनों के बारे में भी बताओ, ताकि मैं उस दौरान कोई कॉन्ट्रैक्ट ना करूं, कोई व्यापार ना करूं, कोई बिजनेस ना शुरू करूं। तो मुझे अगर पहले से पता होगा कि कौन सी चीजें, कौन से दिन मेरे लिए अच्छे जाएंगे और बुरे जाएंगे, तो मैं इस हिसाब से अपनी बिजनेस को एस्टैब्लिश कर सकता हूं और आगे बढ़ा सकता हूं। The next arrival is Sir Mammon, Sir Epicure Mammon। तो इनके जो नेक्स्ट क्लाइंट थे वो थे Sir Epicure Mammon, ठीक है। He wants to grow fabulously rich and so is very eager to have the Philosopher's Stone, which Subtle has promised to give him that day। और इसने क्या किया, इसे बहुत ज्यादा अमीर बनना था, बहुत फटाफट बहुत जल्दी अमीर बनना था, बहुत सारे पैसे कमाने थे। तो इसने क्या किया, सटल से फिलोसोफर स्टोन की डिमांड की। फिलोसोफर स्टोन, जैसा कि मैंने बताया आपको, कि वो एक ऐसा स्टोन होता है जिससे कोई भी मेटल गोल्ड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऑब्वियसली अगर कोई ऐसी ऐसी बातें कर देता है तो लोग तो उसको लेना चाहेंगे ही। उसी तरह मैमन भी इसे लेना चाहता था। और मैमन किसके साथ आया था, शर्ली के साथ आया था, उसका एक फ्रेंड था। बट शर्ली ना इन सब चीजों को देख के बिल्कुल भी कन्विंस्ड नहीं था। ही डज नॉट बिलीव इन एल्केमी एंड ही हैज ब्रॉट हिम देयर इन ऑर्डर टू कन्वर्ट हिम। बेसिकली शर्ली इन सब चीजों पे बिलीव नहीं करता था, इसीलिए सर एपिक्योर मैमन उसे लेके आए थे कि नहीं देखो ऐसी चीजें होती है, ठीक है। और जैसा कि सटल ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसे फिलोसोफर स्टोन देगा, लेकिन वो कह रहा है कि कुछ समय बाकी है अभी स्टोन को पूरी तरह से तैयार होने में। बट उसी समय एपिक्योर मैमन से सटल कहता है, इफ यू यूज दिस स्टोन
for the social good, then it will be okay. But to satisfy his own greed for gold and the lust for women, a curse shall surely fall upon him and he would be ruined. तो इसमें क्या कहता है कि अगर तुम इसे सोशली यूज करोगे किसी की मदद करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, तो तुम्हारे लिए ये फिलोसोफर स्टोन अच्छा जाएगा. बट अगर तुमने इसमें थोड़ा भी लालच किया या अपने लस्ट के लिए यूज किया, जो वुमेन के लस्ट के लिए यूज किया, तो तुम्हारे ऊपर कर्स जाएगा, जो श्राप जाएगा और सारी चीजें खराब. शर्ली स्टिल कंटिन्यूज टू बी अ सेप्टिक. सैडली अभी भी डाउट में. सेप्टिक मीन्स डाउटफुल. तो शर्ली जो मैमन के साथ आया था वो अभी भी डाउट में कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, ये तुम लोगों को बेवकूफ बना रहा है. एंड एट द वेरी सेम पॉइंट डॉल इज सीन एट अ डिस्टेंस. जो डॉल कॉमन थी वो थोड़े डिस्टेंस पे दिखाई देती है इन लोगों को. एंड सटल इज वेरी एंग्री एट हर अपीयरेंस. और उसी दौरान सटल को बहुत गुस्सा आता है कि हम लोग की जो ये प्लानिंग चल रही है ये इसे खराब कर देगी. बट फेस हु हैज रिटर्न एक्सप्लेन टू देम दैट शी इज डिपेंडेंट सिस्टर ऑफ अ लॉर्ड. शी इज read too much, so she became crazy. She has been sent there by her brother for treatment. तो वो कहता है ना, फेस आता और चीजों को संभाल लेता है. वो कहता है कि नहीं ये जो लेडी है ना थोड़ी अनस्टेबल है मेंटली, तो ये यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आई है. Shirley does not believe a word of this. He is sure that it is about Bawdy House and the lady is none else but a prostitute. लेकिन क्या होता है, शर्ली अभी भी बिलीव नहीं कर रहा है. शर्ली को लग रहा है कुछ तो ऐसा गड़बड़ है इस घर में और ये लोग जो है जो चीजें बता रहे हैं वो एग्जैक्टली वैसी नहीं है. बट मैमन इज टेकन इन बाय द चार्म ऑफ डॉल एंड डिजायर टू इंटीमेट रिलेशन विथ हर. लेकिन मैमन तो डॉल को देख के थोड़ा चकरा गया और उसे अब उससे मिलने की जिद हो गई कि नहीं मुझे तो उससे मिलना है. वो एक्चुअली बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गया था, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गया था डॉल की तरफ. He gives some money to Face and asks him to tell more about the lady. और उसने फेस को थोड़े और पैसे दिए कि मुझे इसके बारे में बताओ. And then Face whispered to Mammon to come out in after 2 hours. He will arrange a meeting between him and the lady. और फेस ने ऐसा कहा कि तुम थोड़े टाइम बाद आओ, 2 घंटे बाद आओ, मैं पक्का से तुम दोनों की मीटिंग करवाऊंगा. Ananias, a Puritan, now arrives. He has come from a group of exiled Puritans with their headquarters at Amsterdam. From there, they propose to carry on propaganda to enlist more and more people to their own faith. For this money is required, which they hope to get with the help of Philosopher's Stone. तो एनानिमस भी वहां से आया था एम्स्टरडम से और कुछ पैसों की उसे भी जरूरत थी. तो पैसे कहाँ से अरेंज होंगे, तो अगेन फिलोसोफर स्टोन से अरेंज हो सकते हैं. तो वो भी यहाँ इसी चीज के लिए आया था. Subtle first confused and bewildered Ananias by the using of high-sounding words and highly technical language of alchemy. So basically आपने भी देखा होगा जो बहुत सारे फ्रॉड लोग होते हैं, उन लोगों के पास जाओगे तो ऐसा साउंड सिस्टम प्ले कर देते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले करते हैं जैसे हमें बहुत हॉरिबल होता है. या हम टीवी में ही किसी चीज़ों को देखते हैं, पिक्चर हो, तो उसी में पता चलता है कि कोई बाबा के पास लोग गए तो बहुत ज़्यादा अजीबो गरीब साउंड निकालते हैं जो हम लोग कहीं ना कहीं सच मान लेते हैं. बिकॉज साउंड्स अफेक्ट्स आवर माइंड वेरी मच. तो यहाँ भी वही सारी चीज़ें हो रही थी. एनानिमस फेल्स टू अंडरस्टैंड इवन अ वर्ड ऑफ इट. और एनानिमस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था. और उसी दौरान सटल ने उससे कहा कि तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, तुम अपने सीनियर को लेके आओ, ट्रिबुलेशन को लेके आओ, सर ट्रिबुलेशन को लेके आओ. तो वो वहां से चला गया. नाउ ड्रगर कम्स अगेन. अब ड्रगर की अपीयरेंस होती है दोबारा. फेस आस्क डगर to give Subtle a gold coin and tells Subtle that Abel wants a sign which will make him thrive in his plans and in whatever business he has in hands. The sign is readily given. At this, Face makes Abel present to Subtle some tobacco and Subtle is much pleased. और उसी दौरान एबल ड्रगर वापस आता है और उसे बोलता है कि उसे कुछ साइन चाहिए. जैसे हम भी किसी के पास जाते हैं तो कंफर्मेशन के लिए कुछ चीजें बोलते हैं, तो उसी तरह यहाँ पे ड्रगर ने भी उसे कहा. एंड एबल ड्रगर टेल्स हिम दैट देयर इज अ रिच विडो यंग एंड ब्यूटीफुल हु लिव्स नियर
his own house, और उसी के साथ ये भी बताया कि एक बहुत ही यंग विडो है और बहुत ही रिच है जो अपने भाई के साथ उसी के घर के बगल में रहती है, ठीक है। एंड हिज ब्रदर इज रिच एंड यंग नोबल मैन हु कंट्रोल्स हर, और उसका भाई जो है उसे बहुत ही कंट्रोल्ड करके रखता है। He also told his sister, the young widow who wants to know her future, has come with him with this end in view, but she is afraid to enter the house, for it may bring disgrace on her. Subtle and Face assure him that there is no harm in her coming to them. So जैसे ही सटल और फेस ने ये सुना कि ये जो यंग विडो है बहुत ही रिच है और उसका भाई जो है वो भी बहुत रिच है, तो इन दोनों के मन में ग्रीड जाग गया, लालच आ गई, और उन लोगों को लग रहा था अब कैसे भी ये दोनों मेरे पास आ जाए और मैं इन्हें भी बेवकूफ बना के पैसे ऐड सकूं। तो उसी दौरान उसने एबल ड्रगर ने कहा कि वो आना तो चाहती है बट उसे इस घर में आने से डर लग रहा है, लेकिन फेस और सटल ने उसे अश्योर कराया कि उसे आने को बोलो, कोई हार्म नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। As soon as he gone, both Face and Subtle exclaimed that the widow would make a good wife for them, and they would draw lots to decide which one of them should have her. Face then goes to meet Shirley at the temple church. He is ready late for the appointment. और उसी दौरान क्या होता है, दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं, सोचते कि अरे वाह अब ये आ जाएगी तो शायद मेरी वाइफ बन जाएगी। तो वो दोनों आपस में इन्हीं चीजों के लेके बहस करने लगते हैं। फिर अचानक फेस को याद आता है कि उसे तो शर्ली से मिलने जाना था, क्योंकि शर्ली बहुत डाउट में था, तो फेस कैप्टन का रूप लेके शर्ली से मिलने जाता था। नाउ Ananias returns with Sir Turbulence. Subtle is really glad that Ananias has returned with Sir Turbulence. He tells them that they had been late by a few minutes. The whole process would have been put an end to and all their money wasted. और उसी दौरान सटल ने बोला कि आप लोग बस कुछ ही मिनट लेट हो गए और आप लोगों की जो भी सारी पैसे आप लोगों ने लगाए थे सारा वेस्ट हो गया। Tribulation apologize on behalf of Ananias, और Tribulation माफी मांगता है अनानियस के बदले, एंड ऑफर हिम हिज पर्स, और अपना पर्स दे देता है कि तुम्हें जितनी चाहिए और पैसे ले लो, लेकिन मुझे वो फिलोसोफर स्टोन प्लीज बना के दे दो। तो वो सटल कहता है कि द फिलोसोफर स्टोन वुड बी रेडी अबाउट अ फोर्टनाइट एंड मोर मनी विल हैव टू बी स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ गोल्ड। तो ये सारी चीजें करने के बाद Sir Turbulence and Ananias are pleased at this. Now they both are convinced of the reality of alchemy. As a knock is heard on the door, and Ananias and Tribulation are sent in a look of the goods they have to purchase, and Subtle himself gets ready to receive the new arrivals. और जैसे ही वो लोग बात ही कर रहे थे, एक न्यू अराइवल होता है और सटल ने अनानियस और ट्रिबुलेशन को कुछ चीजें दिखाई कि आपने जो पैसे दिए हैं इनसे ये सारी चीजें आप खरीद सकते हो। तो वो लोग उस चीजों को देखने चले गए और सटल रेडी हो गया एक नए क्लाइंट से मिलने के लिए। एंड इट इज द फेस हु हैज रिटर्न्ड, और फेस जो कि कैप्टन का रूप लेके गया था शर्ली से मिलने, वो रिटर्न होता है और बहुत ही गुस्से में आता है। क्यों? क्योंकि शर्ली अपने अपॉइंटमेंट पे नहीं आया, बट उसने सटल को एक गुड न्यूज दी दैट ही मेट अ रिच स्पेनिश काउंट हु हैज बीन टेकन इन बाय द चार्म्स ऑफ डॉल एंड वुड सून अराइव देयर। और उसने उसे बताया कि वो शर्ली तो नहीं आया, बट उसने एक स्पेनिश काउंट को देखा है जो कि कुछ ही देर में आता होगा, क्योंकि उसे भी डॉल के बारे में पता चला और वो भी उसके चार्म से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड है। Their bath has come famous and the rich Spanish governor would first like to have his bath, और उनका जो बात था वो भी फेमस था। तो स्पेनिश गवर्नर जब आते तो वो पहले बात लेते, देन वो डॉल से मिलते। So doll is advised to dress herself in a very best and use her sexual charm to the best of her ability. और डॉल को फिर बुलाया गया और उसी दौरान उसे बताया गया कि देखो एक स्पेनिश गवर्नर आने वाले हैं जिन्हें तुम्हें बहुत ही इम्प्रेस करना है अपने चार्म से। तो ये सारी चीजें हुई। As soon as Castril and Dame Pliant enter, Subtle, in order to impress Castril, pretends that he has come to him to learn the art of dueling and points to the rules and regulation and the various ways of excelling in a duel, a chart of which he has already drawn
and which Castiel should study. Subtle then turns his attention to Dame Pliant. He pretends to read the lines on her forehead and foretells on this basis that she would soon have a rare husband, perhaps a great scholar, but certainly not a knight. और उसी दौरान क्या होता है, कास्ट्रील और डेम प्लाइंट आते हैं, दोनों भाई बहन, और सटल उन लोगों को बहुत इम्प्रेस करने की कोशिश करता है. इवन सटल डेम प्लाइंट के सर पे, फॉरहेड पे जो रेखाएं बनी रहती है उसे देखता है और कहता है कि तुम्हारी बहुत जल्दी ही वापस से शादी वाली है एंड तुम्हें बहुत एक ही अच्छा हस्बैंड मिलने वाला है जो कि एक बहुत अच्छा ही स्कॉलर रहेगा. नाउ फेस ब्रिंग्स इन द स्पेनिश काउंट. Subtle is very much surprised to see the kind of dress the Spanish count is wearing. तो अब क्या होता है, स्पेनिश काउंट आते हैं और सटल उसके जो वे ऑफ ड्रेसिंग था उसको देख के बहुत ही खुश हो जाता है. एंड द काउंट स्पीक्स इन स्पेनिश विच सटल एंड फेस फेल टू अंडरस्टैंड एंड थिंकिंग दैट ही डज नॉट नो इंग्लिश. और जो स्पेनिश काउंट जो शर्ली डिस्गाइज बन के आया था वो स्पेनिश में बात करना शुरू करता है और सटल और फेस ने क्या सोचा कि अरे इसे तो इंग्लिश आती ही नहीं है, और वो दोनों उन लोगों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिए. ठीक है. द काउंट इज दस एबल टू फॉर्म एन आइडिया ऑफ द गोइंग ऑन विद इन द हाउस एंड द ट्रिक्स दे यूज टू गल देयर क्लाइंट्स. और बेसिकली शर्ली यहाँ इसलिए आया था कि इन लोगों को एक्सपोज कर सके, ये लोग जो भी लोगों को चीट कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, उससे लोगों को बचा सके. क्योंकि जैसा फेस ने पहले ही बताया था, शर्ली यहाँ पे डॉल के चार्म से इम्प्रेस होके आए हैं, और क्योंकि अभी डॉल तो सर रिपिक्योर मैमन के साथ बिजी थी तो शर्ली का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा. अब उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या करें, और उसी समय कास्ट्रेल और उसकी बहन डेम वहाँ पे मौजूद थी, तो उन लोगों को और कोई रास्ता नहीं दिखा और उन लोगों ने सोचा कि शर्ली ने थोड़ी ना डॉल को देखा है, उसने तो बस उसकी बातें ही सुनी है, तो वो लोग डेम को उस लड़की की जगह भेज देते हैं. एंड सटल टेक्स हिम इनटू द एंजॉय अ वेल सेंटेड बाथ स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर हिम. और सटल उसे वहां पे एक बात पे लेके जाता है जो उसी के लिए प्रिपेयर किया गया था. Face brings in Castiel and Dame Pliant. Castiel is eager that she should make love and marry the Spanish count, but Dame Pliant does not agree. लेकिन कास्टेल, जैसा कि सटल ने बताया था कि तुम्हारी बहन की शादी बहुत जल्दी ही होगी, तो कास्टेल ये सब सुन के बहुत खुश था कि उसकी बहन की शादी एक स्पेनिश गवर्नर से होने वाली है, बट डेम इसके लिए अग्री नहीं थी. नाउ इट्स टाइम फॉर एक्सपोजर. Lovewit, the master of the house, has returned much before his time, and a number of their neighbors are walking with them. और फाइनली ये चीज़ें होती है, जब ये लोग आपस में बात कर रहे थे, ये लोग फुल्ली बिजी थे, तो लवविट ने जो समय बोला था अपने सर्वेंट जेरेमी को कि मैं इस समय तक आ जाऊंगा, वो उससे पहले ही वापस आ जाता है और कुछ नेबर्स भी उसके साथ आना शुरू कर देते हैं. और उसी दौरान उसके नेबर्स कहते थे कि लवविट, जब तुम यहाँ नहीं थे तो तुम्हारे घर में बहुत सारे लोग आते जाते रहते थे. और फेस तो अब बिल्कुल ही डर गया, अब तो उसे लगा वो बिल्कुल ही फंस गया. उसने बिल्कुल अपना जो भी डिस्गाइज पहन कर रखा था अपने आप को, वो उसने पूरा चेंज किया और अपने मास्टर की तरफ उसी तरह प्रेजेंट हुआ जैसे वो पहले रहता था. एंड उसने बहुत ही डरते डरते कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, जब से आप यहाँ गए हो मैंने तो इस डोर को ही बंद कर रखा था. सब नेबर्स ने बहुत बोला, बट फाइनली ऑल द नेबर्स टेस्टिफाइड टू ट्रूथ हिज ऑफ स्टेटमेंट. दे डिड नॉट सी हिम फॉर द लास्ट सो मेनी डेज. क्योंकि नेबर्स ने बोला कि मैंने तो तुम्हारे सर्वेंट जेरेमी को भी बहुत दिनों से नहीं देखा था, आखिर ये हुआ क्या. तो फाइनली फेस ने, जेरेमी ने सब कुछ इधर उधर बातें करके किसी तरह सबको कन्विंस कर लिया और फाइनली जो नेबर्स थे वो भी चले गए. और अब क्या हो रहा है, द वेरियस ड्यूप्स कम्स वन बाय वन एज सून एज लवविट एंड फेस हैव गॉन इन. और जैसे लवविट और फेस घर के अंदर जाते हैं, वन बाय वन जितने भी ड्यूप्स थे, जो बेवकूफ बने थे, वापस आ रहे थे. दे नॉक एंड नॉक बट द डोर इज नॉट ओपन. और नॉक कर रहे हैं डोर को बार बार और डोर ओपन नहीं हो रहा है. इन लार्ज एज दिस दे गो आउट टू कॉल द पुलिस. और वो लोग पुलिस को बुलाने चले गए.
लवविट इज सस्पिशियस। अब लवविट को थोड़ा सस्पिशियस होने लगा कि आखिर मेरे नेबर्स भी ऐसा कह रहे हैं कि कोई ना कोई आता जाता रहता था, अभी डोर बार बार नॉक हो रही है, फेस आखिर सच्चाई बता क्यों नहीं रहा है। और जब भी कोई आ रहा था ना तो फेस कह रहा था कि नहीं ये लोग ड्रंक्ड हैं, ये लोग ऐसा पागल लोग हैं, ड्रंक लोग हैं जो कि आ रहे हैं, नॉक कर रहे हैं और फिर चले जा रहे हैं। ठीक है। Next arrive Ananias and Sir Tribulation, and they too want the door to be opened at once. They called it a bawdy house, a cage of unclean birds. Lovewit getting more and more suspicious. और लवविट और भी ज्यादा सस्पिशियस हो रहा है क्योंकि एक के बाद एक लोग आते जा रहे हैं और कुछ क्लियर हो नहीं पा रहा है। देन अगेन मैमन एंड शर्ली रिटर्न विद द पुलिस, और मैमन और शर्ली अब क्या होता है, पुलिस के साथ रिटर्न होते हैं। They threaten to break open the door if it is not open at them once. Lovewit talked to them from within the house and asked them to have some patience. They angrily shouted at him that they had come with the police in search of the cheat alchemist, his instrument Captain Face, and the lady who is also their associate. और क्योंकि लवविट को अब सस्पिशंस हो रहा था और उसने उन लोगों से घर के अंदर ही से बात करी कि आप लोग थोड़ा पेशेंस रखो, लेकिन वो लोग चिल्ला रहे थे कि नहीं, यहाँ पे जो लोग सबको चीट कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, हमें उन लोगों को मिलना है, और जो भी फेस है, लेडी है, जो भी सब ग्रुप है, उन लोगों को मिलना है। एट दिस लवविट ओपन्स द डोर, और लवविट ने जैसे ही डोर ओपन किया, tells them that he is the owner of the house, that they are most welcome in to search for their personal they want. He came to city only a little while ago. Finally लवविट ने बताया कि I am the master of this house, और मैं यहाँ कुछ समय से मौजूद नहीं था, और आप लोगों को जो सर्च करना है वो सर्च कर सकते हैं। ओके, now Drugger now arrives and he is too beaten away by Lovewit. Then comes Castril in search of his sister Dame Pliant. Lovewit had already married her, and so he threatens to thrash Castril if he has harsh to her. अब क्या होता है, फाइनली जेरेमी ने किसी तरह अपने मास्टर को, लवविट को सारी चीज़ें बता दी और बहुत ही माफ़ी मांगी अपनी गलतियों की, और किसी तरह कन्विंस किया कि प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो, मैं आपकी शादी करा दूंगा डेम प्लिएंट से, बहुत अच्छी लड़की है, यंग है, बहुत कम टाइम में, बहुत कम उम्र में विडो हो गई है। तो लवविट किसी तरह कन्विंस हो जाता है और अपने फेस को, सर्वेंट को माफ कर देता है। और जब कैस्ट्रिल के आने के बारी आती है, उसी दौरान डेम और लवविट ने शादी कर ली थी, और जैसे ही मैंने आपको पहले ही बताया था, कैस्ट्रिल अपनी बहन को कंट्रोल करता था, लेकिन अब तो लवविट ने उससे शादी कर ली। अब उसने कहा कि अगर अब तुमने कुछ किया तो मैं तुम्हें भी बहुत पिटाई लगाऊंगा, अब ये सिर्फ तुम्हारी सिस्टर नहीं, अब मेरी भी वाइफ हो गई है, अब तुम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हो। Now Lovewit is grateful to Jeremy, through whom he has received such happiness in the form of his wife, Dame Pliant. Now the play ends with the master and servant reconciled. The cheat and their ways have been exposed, and the various dupes, we hope, have been cured of their humor. Finally play end होता है, और इससे हमें ये भी पता चलता है कि बहुत लोग हैं दुनिया में अभी भी जो बहुत लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं अलग अलग चीज़ों से, फिलोसोफर स्टोन है या फिर कुछ भी है। तो बेन जॉनसन की एक अच्छी चीज़ ये है कि ये इस तरह के प्ले लिखते हैं जो एक्चुअली में जो कंट्री में होता है, एक्चुअली में जो वर्ल्ड में होता है, उसे एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं अपने प्ले के थ्रू, ताकि लोग इन सब चीज़ों में ना फंसें। So that's it for this video lecture. Thank you everyone. Keep enjoying.